Welcome students. I hope you all are doing good and well. Today we will study part 2 from the same chapter that we have covered in the previous video. Then let's move on to the topic. Remedial and preventive measure. पिछले वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग ने डिज़ास्टर के बारे में देखे थे कि व्हाट आर द काइंड ऑफ डिज़ास्टर, दैट इज़ फ्लड, स्टॉर्म्स, फ्लड, अर्थक्वेक एक्सेट्रा। और आज हम उसके रेमेडियल एंड प्रिवेंटिव मेजर्स देखेंगे। व्हाट आर दे? कीप वॉचिंग टीवी एंड रेडियो न्यूज़ एंड बुलेटिन्स। आपको टीवी वगैरह देखना है ताकि आपको न्यूज़ वगैरह के बारे में मालूम पड़े। यूज़ बैटरी ऑपरेटेड रेडियोज़ इन मोबाइल्स। ओके, मोबाइल that are battery operated, you have to use that. Heed the warnings issued by the meteorological department carefully. You have to fulfill that warnings, you have to listen that warnings and pay attention towards it. Use the website www.imd.government.in. This website you have to keep it in mind. Landslide over in hilly areas due to the cloudburst or heavy rains. On such occasion, do not take shelter at the foot of a hill. Okay, down the hill. If there is a landslide of any hilly areas, you don't have to take a shelter at the foot of a hill. Means आपको hilly region में shelter नहीं लेना चाहिए. During floods, do not linger in houses or areas on river banks. The areas that are closer to river banks, you don't have to live there or you don't have to take shelter. Okay, during an earthquake, roads split open, the road grounds, railway tracks get uprooted. Okay, hence when moving from one place to another, ensure that the road is safe further on. When you are moving from one place to another, you have to sure that the road is built up or not. Okay, whether it has attack from earthquake or not. Take shelter in relief camp as they provide medicine. You have, if there is earthquake in your area, what you have to do, you have to take shelter in relief camp. There are many camps. Okay, so you just have to go there. You just have to take shelter there. For they provide medicine, food packets, drinking water, first aid, etc. Now what is the 9th point here? To get protection from fire, use fire extinguisher in public places like school, hospital, railway station. Okay, use fire extinction there. Now what is the third? Look student, there is 3 pictures. This is fire extinguisher, right? This is a camp, where you have to take shelter in case of any injury. Now what is this? Landslide, right? If there is a landslide, you have to take shelter by this type. In day-to-day life, sometimes first aid is here in this orange box. What is first aid student? फर्स्ट एड का मतलब होता है कि प्रिवेंटिव मेजर, जो सबसे पहली चीज़ आपको प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे इस्तेमाल करना है. In day-to-day life, sometimes we have to face disaster or accidents of various proportions. On such occasion, it is necessary to give some immediate aid even before medical treatment becomes available. Okay, in any case like face disaster or accident or various things that are happening in our day-to-day life, that cuts and etc. तो मेडिकल ट्रीटमेंट से पहले एक फ़र्स्ट एड आपके घर में अवेलेबल होना ज़रूरी है. ओके, नाउ व्हाट इज़ एक्सटर्नल ब्लीडिंग? फर्स्ट एड शुड बी टेकन in which cases? That is external bleeding. If a person is bleeding का मतलब होता है बहना, खून का बहना. First make him sit or lie down comfortably. What you have to do? You have to make him sit first. Okay, आपके आसपास कोई भी कंफर्टेबल जगह होंगी, जैसे चेयर होगी, बेड होगा, आपको उस पर बिठाना है उसको. कीप द ब्लीडिंग पार्ट ऑफ द बॉडी अबाउ द लेवल ऑफ द हार्ट. ओके, हार्ट के लेवल से उसको थोड़ा ऊपर रखना है, थोड़ा उसको ऊपर रखना है. एंड क्लीन इट विथ वाटर. फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू? क्लीन इट विथ वाटर. ओके, नाउ सेकेंड इज बर्न्स एंड स्काल्ड्स, माइनर बर्न्स. बर्न्स का मतलब होता है जला हुआ. स्कैल्ड्स एंड माइनर बर्न्स, छोटे छोटे या फिर कुछ ज़्यादा ही जल जाना, उसको बोलते हैं बर्न्स.
The injured part should be washed with water or held under water. Okay, that part should be held in water. Give the victim water to drink. उसके बाद victim जो जला हुआ है उसको पानी देंगे हम पीने के लिए. Clean the wounds using a cotton swab soaked in antiseptic solution. एक cotton swab लेंगे, उसको antiseptic solution में dip करेंगे, and then what you have to do, you just have to clean that wound. Okay, do not apply oily ointment. Oily ointment उसके ऊपर नहीं लगाएंगे, जैसे खोपरे का तेल लगाते हैं या फिर बहुत सारी चीज़ें लगाते हैं, तो उसकी वजह से वो सब चीज़ें हमको नहीं लगाना है. कवर वूंड यूजिंग ड्राई ड्रेसिंग. ओके, कोई सूखा कपड़ा लेंगे और उसके ऊपर उसको कवर कर देंगे. सीरियस बर्न्स जो रहेंगे उसके ऊपर क्या करना है आपको, ये माइनर बर्न्स के लिए है. आपको सीवियर जो बर्न रहेंगे उसके लिए क्या करना है, गिव इमोशनल सपोर्ट. पर्सन जो है सीवियर बर्न में रहता तो अक्सर जो है इमोशनली डिस्टर्ब हो जाता है, तो फर्स्ट आप उसको इमोशनल सपोर्ट देंगे. ठीक है, उसको पैम्पर करेंगे. सेकेंड, कवर द वुंड्स विथ स्टेरिलाइज क्लोथ. एक स्टेरिलाइज क्लोथ का मतलब, स्टेरिलाइज क्लोथ का मतलब द क्लोथ विच इज़ डिसइंफेक्टेड. ओके, ऐसा क्लोथ जो पूरी तरह से साफ़ हो, जिसमें कोई भी टाइप के जर्म्स वगैरह प्रेजेंट ना हो. रिमूव ज्वेलरी शूज़ एक्सेट्रा इफ़ इजीली पॉसिबल. उसकी ज्वेलरीज या शूज़ वगैरह कोई भी चीज़, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, इजी इफ़ पॉसिबल उसको रिमूव करेंगे. डू नॉट टच और बर्स्ट द ब्लिस्टर ऑन द स्किन. ब्लिस्टर्स का मतलब होता है छाले. जो स्किन में उसके ब्लिस्टर्स रहेंगे उसको हम लोग बर्स्ट नहीं करेंगे, उसको फोड़ेंगे नहीं, उसको टच नहीं करेंगे. डू नॉट अप्लाई ऑयली ऑइंटमेंट्स. उसके ऊपर ऑयली ऑइंटमेंट्स जो है वो नहीं लगाएंगे. डू नॉट ट्राई टू रिमूव द क्लॉथ इफ़ इट इज़ स्टक टू द बर्न स्किन. जो क्लॉथ उसकी स्किन पे चिपका हुआ है जलने की वजह से, उसको हम लोग रिमूव नहीं करेंगे. ओके, इट विल हर्ट हिम बैडली. इफ़ द पेशेंट इज़ कॉन्शियस, गिव वाटर टू ड्रिंक बट अवॉइड टी और कॉफ़ी और अदर स्टिमुलेटिंग ड्रिंक. स्टिमुलेटिंग ड्रिंक्स मतलब जिसमें एसिड हो या फिर जो गर्म चीज़ हो, वो हम लोग उसको देना अवॉइड करेंगे. गेट मेडिकल एट वंस. और उसके बाद उसको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया जाएगा. देन नंबर थर्ड इज सन स्ट्रोक. व्हाट इज मीन बाय सन स्ट्रोक? सन स्ट्रोक का मतलब होता है धूप लगना. ठीक है, when we work in the sun continuously for a long time, the body loses a lot of water and minerals. That is the reason for sunstroke. जब हम बहुत कंटिन्यूसली धूप में काम करेंगे तो बॉडी के जो मिनरल्स और वाटर है वो लॉस होते जाएंगे, एंड दैट इज़ नथिंग बट द सनस्ट्रोक. रेमेडियल मेजर हम क्या करना चाहिए जब सनस्ट्रोक होगा, तो टेक अ पेशेंट टू अ कूल प्लेस और इन द शेड. ठंडी जगह पे लेके जाएंगे पेशेंट को. स्पंज द होल बॉडी विथ कोल्ड वाटर. ठंडे पानी से पूरी बॉडी को स्पंज करेंगे. प्लेस अ क्लॉथ सोक्ड इन कोल्ड वाटर ऑन द नेक. नेक पे क्या रखेंगे, कोल्ड वाटर का क्लॉथ रखेंगे. गिव प्लेंटी ऑफ वाटर और लिक्विड लाइक शरबत्स टू ड्रिंक. ओके, द पेशेंट शुड बी ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर. ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना ज़रूरी है क्योंकि वाटर लॉस हो गया बॉडी में से, तो अब ज़्यादा से ज़्यादा पानी देंगे उसको, ORS के सोल्यूशन देंगे एंड मैनी शरबत्स. If the patient feel like vomiting, make him lie prone. That is on his abdomen with the head turned to one side. Okay, उसकी एब्डोमेन पे हम उसको लेटा देंगे अगर उसको वॉमिटिंग जैसा लगेगा बार बार. गेट मेडिकल हेल्प और शिफ्ट द पेशेंट टू द हॉस्पिटल. उसके बाद में हम पेशेंट को हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देंगे. नाउ फोर्थ वन इज़ स्नेक बाइट. स्नेक बाइट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? सांप का काटा हुआ. ठीक है, देर आर नियरली 20,000 स्पीसीज ऑफ स्नेक्स. स्नेक की कितनी स्पीसीज़ है? 2,000. सॉरी, कितनी है? 2,000. ऑफ दीज ओनली अ फ्यू लाइक कोब्रास, क्रेट्स, वाइपर्स एंड सी स्नेक्स आर पॉइजनस. जिसमें से सिर्फ कोबरा, क्रेट, वाइपर्स और सी स्नेक्स जो है वो कैसे रहते? पॉइजनस रहते. नॉट एवरी स्नेक इज़ अ पॉइजनस. देयरफॉर ऑल स्नेक बाइट्स आर नॉट फैटल. फैटल का मतलब डेथ होता है, तो सारे ही स्नेक बाइट ऐसे नहीं होते जिसकी वजह से हमारी डेथ हो सकती है. हाउएवर फियर कॉजेज सीवियर साइकोलॉजिकल शॉक विच कैन रिजल्ट इन डेथ. लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि पेशेंट सोचने से ही साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो जाता है और फिर उसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है. इफ़ यू कम अक्रॉस अ स्नेक, कॉन्टैक्ट अ सर्पा मित्रा rather than killing the snake at once. Now what are the remedial measure for snake bite? Wash the wound with water. आपको जहाँ पे भी स्नेक काटा हुआ है तो आपको उसको वाटर से धोना है.
गिव इमोशनल सपोर्ट टू द पेशेंट, पेशेंट डिस्टर्ब हो जाते हैं तो आपको इमोशनल सपोर्ट देना है। टाई अ क्लॉथ टाइटली अबाउट द वुंड, वुंड के ऊपर आपको क्लॉथ टाई करना है लाइक दिस। तो क्या होगा, जो उसका पॉइजन है ना स्टूडेंट, वो यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, यहीं तक रहेगा। गेट इमीडिएट मेडिकल हेल्प, और उसके बाद में मेडिकल हेल्थ के लिए उसको भेज दिया जाएगा। तो स्टूडेंट इन दिस टाइप रेमेडियल मेजर्स आर देयर। हमने सबसे पहले डिज़ास्टर देखे, अर्थक्वेक, फ्लड, स्टॉर्म्स वगैरह, उसके बाद उसके रेमेडियल मेजर्स देखे, और उसके बाद कुछ चीज़ ऐसी देखे कि जैसे सनस्ट्रोक हो गया, स्नेक बाइट हो गया, और बहुत सारी चीज़ें लाइक बर्न्स, एवरीथिंग वी हैव कवर्ड इन दिस टॉपिक हियर। सो आई होप स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आया होगा। If in case you are not getting any point, see this video 2 to 3 times, you will get it clearly. Okay, then thanks for watching.